Is my voice audible? Yes, yes. Okay. Good afternoon to one and all. On behalf of Guru Govind Singh Foundation, Guru Govind Singh College of Engineering and Research Center, I welcome you all to welcome you all participants on the workshop Rapid Prototyping. This is a 3 days workshop which includes introduction to rapid prototyping, intelligent rapid prototyping tools in prototyping process, application of rapid prototyping, and it will end with the hands-on session on the Cura software. So different experts from RPT will guide you and will share their knowledge during the workshop. So as you all know that rapid prototyping is a trending thing, and in most of the industries they are moving towards the rapid prototyping. As the competition in the market, it is always required that our product should come to the market as soon as possible to overcome heavy competition from the opponent companies. So it is always required that you should design your model as early as possible, and the rapid prototyping is one of the tool which supports that process. So we should have a good knowledge on rapid prototyping process, no matter as we are in mechanical engineering, civil engineering, or even the electronics engineering also uses the rapid prototyping for designing their product. Also, the rapid prototyping is not limited to the prototyping itself. It is also available, or it has been also used to manufacture actual parts also. So I hope you all get the good knowledge on the rapid prototyping during this workshop, and you should get a good hands-on practice on the Cura software. So I would like to invite Dr. CD Mohod, HOD Mechanical, to say few words. Hello. Uh, Good afternoon, dear students, all the participants, and organizer Kudare sir and Chauhan sir. I welcome all the students in this 3-day workshop of rapid prototyping from Guru Govind Singh College of Engineering and Research Center, Nashik. I welcome you all. Uh, Considering this pandemic situation, and as the students are not in a position to go outside, okay, they are not attending it is not possible to attend the college regularly, and that's why for having the proper utilization of the time, we have started the some technical work assignments or technical, so I can say, feast to the students. And in this series, this is our second workshop. First workshop was conducted in the last month, and that is on the Creo. Okay, we have taken the help of the some external agency, that is Invensys CAD, and along with the Invensys CAD, who is the supplier of PTC, we have already conducted one workshop on Creo, and we have got the huge response for that particular workshop. Similarly, now as the nowadays we all are talking about the new technology, and in this new technology, the 3D printing, it is one of the immense, or I can say the emerging technology. We are very proudly, we are in a position to say that our college is the among the few colleges in the Nashik, and more probably maybe the only one college, okay, which can have the facility of 3D printer. And that's why we decided to go for the workshop of organizing the 3D print or rapid prototyping to the students. Again, I am quite glad to say that our students has taken the some initiative, and they started to, I can say, build up or manufacture our own another 3D printers, which are the more capacity. Okay, and regarding this, our management has taken the quite good support. Okay, they has given the financial support to them. Our technical experts like Kudare sir and DP Chauhan sir are providing them the technical support, and the students are in a position to now position to build up again a second 3D printer for the college. Okay. I can say this is a good opportunity. We have already arranged some expert lectures in this series
from the outsiders also. Okay, some eminent speaker from the other colleges will also discuss on this topic with you. And again, I will say this 3-day stay will be definitely beneficial for all the students. I welcome again to all the participants and hope this particular workshop for the rapid prototyping will add certain feathers in your achievements. Thank you for joining this program. Thank you. Thank you, Mohd sir, for your valuable words. Now I would like to invite Mr. Vishwesh Kathe sir from who is assistant professor in Guru Gobind Singh College of Engineering, Nasik, and he is going to deliver you today a session on introduction to rapid prototyping. So I would like to hand over this session to Kathe sir. Yes, sir. Thank you. Okay. Good afternoon, all the participants. We will be starting with our first session, and obviously that is introduction of rapid prototyping technology. Now, let me share my screen first. Okay. I am hearable to all of you? आवाज आ रहा है क्या मेरा सबको? Yes, sir. Yes. Okay, good. Okay, screen share कर दिया है मैंने. So you might see my desktop screen. Yes, sir. Okay. Thank you. So now here we can start with our introductory session. So rapid prototyping. Okay, before starting with the actual introduction, we will be discussing few points, and in front of you one sentence is there. You may read it. A picture is worth 1,000 words. Similarly, a prototype is worth 1,000 pictures. So you might have heard the first sentence that a picture is worth 1,000 words. So if you read any article or if you read 1 page, 2 page text, so reading that article is equals to reading a picture. That is what we know. And saying few words about prototype in the similar way, reading a prototype or understanding a prototype or maybe testing a prototype is equals to 1,000 pictures. So from these words, you may understand the importance of prototype and what important role they play in industry, manufacturing industry, or maybe other industries also. So let's move ahead. Now, before starting with the actual introduction of rapid prototyping technology, we will be discussing few minutes for CAD, CAM, and CAE, what these concepts are, because the evolution of this rapid prototyping technology is from these three concepts only. So first we will understand what these three concepts are: CAD, CAM, CAE. Might be many of you knowing these concepts, but just revision purpose, we will discuss for a few minutes. So what CAD is, what CAM is, and what CAE is. So full forms are there: computer-aided design, computer-aided manufacturing, and computer-aided engineering. So all these three plays important role in all the industries, like mechanical industry, maybe electrical industry, and all other industries. So what CAD is, it is basically जब भी कोई पार्ट बनाना होता है, जब भी कोई पार्ट मैन्युफैक्चर करना होता है, या जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है, सिस्टम बनाना होता है, तो उस वक्त अपने को ऑन पेपर अपने को कुछ स्केच चाहिए जिसमें डायमेंशंस हो, जिसमें स्पेसिफिकेशंस हो, उसका शेप साइज समझ में आ जाए, उसमें मटेरियल कौन सा यूज किया है, एंड उसका ऑल भी अदर सारे जो टर्म्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, वो मेंशन हो, ताकि उसका हेल्प लेके अपन वो सिस्टम
बना सके या कुछ पार्ट बना सके. सो इट स्टार्ट्स विद द कंप्यूटर एडेड डिजाइन. उसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आप सबको पता है डिजाइन बोलते हैं. एंड वो कंप्यूटर के आधार से अगर करेंगे डिजाइन बनाएंगे तो वो हो गया कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. सो कैड में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइक ऑटो कैड. ऑटो कैड मैकेनिकल के लिए होता है, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए भी होता है. यू ऑल नो दैट. कंप्यूटर एडेड डिजाइन में अगर मैकेनिकल में और डीप में जाएंगे तो उसमें वी कैन टेक फ्यू नेम्स लाइक Unigraphics is there, UGNX, then CATIA software is there, then ProE softwares are there. So these softwares are used for designing a component or designing a system. Okay, so that basically all these softwares and these concepts come under CAD, computer aided design. Now moving further, एक बार डिजाइन बन गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर का यूज करके डिजाइन बना लिया, स्केच बना लिया, उसका ड्राइंग बन गया. बट अगला स्टेप क्या है कि उसका हेल्प लेके, वो डिजाइन का या ड्राइंग का हेल्प लेके जो भी सिस्टम है या जो भी पार्ट है, प्रोडक्ट है, उसको मैन्युफैक्चर करना. सो ट्रेडिशनल अगर कंसेप्ट देखेंगे जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है या बाकी के जो कंसेप्ट है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है, वो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में मैन्युअली हैंडल किए जाते हैं. वो मशीन्स को मैन्युअली हैंडल किया जाता है. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, कंप्यूटर्स का यूज बढ़ते गया, तो वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग को भी ऑटोमेट कर दिया गया. सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं लाइक CNC VMC मशीन्स. सो दीज ऑटोमेटिक मशीन्स आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट हैज ओरिजिनेटेड, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें CNC VMC मशीन्स आते हैं. एंड CNC VMC मशीन्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जैसे UGNX से डिजाइन बना के उसको CNC को इनपुट देना, वो उसमें आता है. या फिर कैम के कुछ सॉफ्टवेयर से रहते हैं, जैसे डेल कैम हो गया. तो डेल कैम में क्या होता है कि जो कैड में डिजाइन बनाया है उसको, उसका इनपुट लेके कंप्यूटर के थ्रू उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके प्रोग्रामिंग के लाइंस लिखे जाते हैं CNC VMC मशीन्स के लिए. एंड देन वो ऑटोमेटिक मशीन्स को फीड किया जाता है, जिससे कि वो जो पार्ट है, प्रोडक्ट है, जो डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है, वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाए. सो इट इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड these all concepts and parts come under CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. अभी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आगे क्या होता है कि अगला स्टेप और है उसमें, जो है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. तो बेसिकली उसमें इंजीनियरिंग किया जाता है. इंजीनियरिंग मतलब क्या कि उस पर एनालिसिस किया जाता है. एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे एक पार्ट तो बना लिया, लेट्स से एक सैंपल बना लिया या प्रोटोटाइप बना लिया, एंड आगे जाके उसको वो अच्छे से काम करेगा कि नहीं, उस पर कुछ टेस्टिंग किया जाता है. मे बी मटेरियल टेस्टिंग होगा, स्ट्रेंथ टेस्टिंग होगा, या उसका वेट होगा, शेप साइज का टेस्टिंग होगा. तो ये सारे टेस्टिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. सो दैट कम्स अंडर CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. तो उसमें भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है. उसमें सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करेंगे तो हाइपरमेश हो गया, नेस्ट्रैन हो गया, या सबको जो पता है जिसमें इंजीनियरिंग किया जाता है वो हो गया. तो ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स कम अंडर CAE. ओके, सो दिस इज अ लिंकेज CAD CAM CAE. मतलब पहले डिजाइन बनाओ बाय यूजिंग कंप्यूटर, उसको मैन्युफैक्चर करो बाय यूजिंग CAM, एंड देन उसका एनालिसिस करो. एनालिसिस करने के बाद एनालिसिस के जो आउटपुट है, एनालिसिस में क्या होता है कि समझो उसका थिकनेस और चाहिए, या मटेरियल चेंज करना है, या शेप एंड साइज चेंज करनी है, उसका डायमेंशंस चेंज करने हैं. तो ये जो भी आउटपुट है CAE का, वो अगेन दिया जाता है CAD को, कंप्यूटर एडेड डिजाइन को. एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में फिर से वो डिजाइन बनाया जाता है, चेंज किया जाता है बेसिकली. अगेन उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है. मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगेन वी कैन डू द एनालिसिस. सो दिस इज हाउ CAD CAM CAE वर्क्स. तो बेसिकली अपना जो वर्कशॉप है प्रोटोटाइपिंग का, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का, तो उसमें ये कंसेप्ट यूज किया जाता है. तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए CAD में उसको पहले जो भी पार्ट बनाना है उसका पहले डिजाइन बनाया जाता है. डिजाइन के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 3D प्रिंटिंग में, या रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं उसको. एंड देन उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं आगे जाके. ओके,
So this is how these three concepts are. Now we will move further. One thing you can make clear that in between अगर आपको कुछ doubts है, questions है, कुछ समझ में नहीं आया point, तो you can ask me questions. And अभी मैंने कैसा कि मेरा screen share किया है, मेरे सामने PPT open है, PowerPoint presentation. तो मुझे chat box में आपने अगर कुछ question पूछा तो वो दिखेगा नहीं यहाँ पे. So you can directly make your mic on and you can ask the question in between. ठीक है? Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good My afternoon. question is that, as you have said recently, instead of CAE, that means computer aided engineering, can we use the other types of analysis software, just like ANSYS software? Right. हाँ बराबर है. अभी ये जो मैंने बताया CAE में, these are the concepts. ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक कंसेप्ट हो गया, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एक कंसेप्ट हो गया, नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट हो गया. अभी नॉन ट्रेडिशनल में आपको तो पता ही होगा कि नॉन ट्रेडिशनल में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें जैसे जैसे रिसर्च होगा आगे जाके तो उसमें एक एक मैन्युफैक्चरिंग की मेथड ऐड होती जाएगी. जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में वायर कट EDM आता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, या उसमें और भी डेवलपमेंट हो गया आगे तो उसके अलग अलग डेवलपमेंट्स आएंगे. तो इस तरीके से ये एक कंसेप्ट है, कैड एक कंसेप्ट है, कैम एक कंसेप्ट है, CAE एक कंसेप्ट है. तो CAE में मैंने जो सॉफ्टवेयर बताए, हाइपरमेश या नेस्ट्रैन या आप जो बोले ANSYS, तो ये तो सॉफ्टवेयर आते ही है, बट इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर उसमें बहुत सारे आएंगे एंड वो सारे मिला के CAE बनता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. राइट? Okay, sir. Please continue. ओके, थैंक यू. और भी किसी के कुछ क्वेश्चंस है? बिकॉज दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. यहाँ से 3D प्रिंटिंग का या रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ओरिजिन हुआ है. सो ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि पहले डिजाइन बनाओ फिर मैन्युफैक्चरिंग करो, उसके एनालिसिस, तो उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक जो मशीन्स है, 3D प्रिंटिंग मशीन है ऑटोमेटिक, उसका डेवलपमेंट हुआ है आगे जाके. ओके, सो वी विल मूव ऑन फर्दर. ओके, यहाँ पे कैड जो है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से इंडस्ट्री में, कौन से फील्ड्स में यूज किया जाता है, उसका लिस्ट है. सो इट इज यूज्ड एवरीवेयर वी कैन से. सो स्टार्टिंग विथ मैन्युफैक्चरिंग का अगर एरिया लेंगे जहाँ से कैड का ओरिजिन हुआ था, वहां से लेकर आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल डिजाइन, मशीनरी, विजुअल आर्ट, मेडिकल, कहीं पे भी जहां पे भी सिस्टम है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन से, सिस्टम से, प्रोडक्ट्स है, वहां पे कैड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इनफैक्ट यू कैन यूज दिस कंसेप्ट कैड इन सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो. आप सबको पता होगा, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे पार्टिसिपेंट के लिस्ट में, तो सर्विस इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये सर्विस एंड प्रोडक्ट ये दोनों अलग होते हैं. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है वो उससे फिर प्रोडक्ट बनता है, एक पार्ट बनता है कुछ भी, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया या फिर लेट से इंजन हो गया, शाफ्ट हो गया, कुछ भी बना सकते हैं. एंड सर्विस इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया, या सर्विस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, या लेट इट बी फूड सेक्टर्स हो गया. तो ये उसमें भी कैड का इस्तेमाल करके उसमें भी अपन प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं. दैट आई वांट टू से. ठीक है, देन यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख सकते हो. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इमेज. सो ये इमेज जो है वहां पे कुछ आपको ड्राइंग दिख रहा है. So these images are all related with your CAD CAM CAE. तो ये CAD में आता है जिसको अपन सॉफ्टवेयर का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं. देन उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं प्रोटोटाइप बना के. सो CAM हो गया, एंड उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं. नीचे के जो दो इमेजेस है, तो ये एनालिसिस का एक स्क्रीनशॉट लिया है, एंड यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो. सो इट्स अ पार्ट वेयर एक ग्रीन कलर का पार्ट है, एक येलो कलर का पार्ट है. तो वो यहाँ पे
एनालिसिस के तरह दिखाया है यहाँ पे. So this is how CAD CAM CAE works. These three things are interrelated, intercorrelated. So ये सारे सेक्टर्स है जिसमें ये CAD CAM CAE का यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है CAE का वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड बायोमेडिसिन, इसमें ज्यादातर यूज होता है. क्योंकि उसमें कैसा है कि जो आउटपुट होता है वो अपने को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, एंड सेफ्टी के हिसाब से भी एंड कॉस्टिंग के हिसाब से भी. ये तीनों सेक्टर्स में ज्यादातर यूज होता है, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड बायोमेडिसिन. तो यहाँ पे और भी डिटेल में दिया है CAD एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर के बारे में. So to choose which software to buy or download depends on the user and what it is they want to design. So ये सब आप बाद में देख सकते हो. You can share this PPT with you all if Pritam sir allowed for sharing the PPT. So softwares है जैसे कि अपन ने डिस्कस किए थे. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दिया है, CAM एंड हाउ इट वर्क्स. ये भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सो इन दिस देयर इज अ यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग. एंड थर्ड इज CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. सो अगेन यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू एनालाइज CAD जियोमेट्री. CAD में जो डिजाइन बनाया है या CAM में जो मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, उसका एनालिसिस करने के लिए. तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट आता है दैट इज FEM. CAE का जो बेस है वो FEM है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड. इसमें क्या होता है कि जो भी मॉडल है, जैसे यहाँ पे एक मॉडल दिखा है क्रैंकशाफ्ट, तो ये सॉरी कनेक्टिंग रॉड है. कनेक्टिंग रॉड का जो ये मॉडल दिखा है उसको अगर एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इट डिवाइड्स द मॉडल इनटू इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स. उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में भी, स्क्वायर पार्ट्स, ट्रायंगुलर पार्ट्स, एनीथिंग, जिसको एलिमेंट्स बोलते हैं. एंड फाइनाइट मतलब क्या कि छोटे 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 एलिमेंट्स, एंड उसको फिर इंटरकनेक्ट करके वो जो मेथड यूज किया जाता है वो है FEM का. एंड दैट इज द बेस ऑफ CAE. CAE में वो यूज किया जाता है. Okay, so with this now we are entering into the rapid prototyping. So rapid prototyping basically क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो आगे जाके देखते हैं अभी अपन. So basically rapid prototyping का जो concept है, we can compare this rapid prototyping concept with our printer. जो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर यूज करते हैं, जिस A4 साइज का जो पेपर होता है उस पे अपन प्रिंट निकालते हैं, तो उसके साथ रैपिड प्रोटोटाइपिंग का भी कंपैरिजन किया जा सकता है. तो उसमें क्या होता है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन होता है. ये मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो आप इसे. सो लेयर बाय लेयर वो पार्ट बनते जाता है, जो भी पार्ट होगा. जैसे यहाँ पे इमेज में एक पार्ट दिखा है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेयर बाय लेयर वो जो उसका मटेरियल है वो डिपॉजिट होते जाता है. सो इट इज फास्ट, then inexpensive alternative for producing prototypes and functional models. It builds parts in thin layers, so उसमें accuracy भी बढ़ती है, and it has minimum operation time and typically runs unattended. Okay, so ये सारे advantages अपन बाद में discuss करेंगे. So first we will come to the point कि rapid prototyping क्या होता है वो पहले देख लेते हैं. तो ये सारे उसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, मेडिकल मॉडलिंग एंड उसमें यूज किया जाता है. सो कंपोनेंट्स ऑफ CAD CAM CAE भी इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं. मेजर कंपोनेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड्स ग्राफिक डिवाइसेस एंड देयर पेरिफेरल्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स पैकेजेस दैट manipulate or analyze shapes according to the
यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, तो कैड में क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होते हैं वो यहाँ पे दिए। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, सॉलिड वर्क, यूनिग्राफिक्स, कटिया, प्रोई, क्रियो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर कैड में यूज किए जाते हैं जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए थे। ओके, नाउ फर्दर 3D प्रिंटिंग की ओर बढ़ते हुए, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन एंड डायरेक्ट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो नाम हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हो नाम अलग अलग, all these are for the same technology which is generally known as rapid prototyping या 3D printing। तो ये अलग अलग नाम क्यों दिए हैं ये देखने से पहले तो मैं एक छोटा सा वीडियो है जो 3D प्रिंटिंग के बारे में या रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में है, एनिमेटेड वीडियो, वो पहले देखते हैं जिससे कि आपको 3D प्रिंटिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग का कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली वो थोड़ा समझ में आ जाए। सो पहले वो वीडियो देख लेते हैं। So let me open that video first. Okay, so here we are. So how exactly 3D printing works? So basically वहाँ पे क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग में जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ लेयर मैन्युफैक्चरिंग, लेयर बाय लेयर पार्ट बनते जाता है। सो वी कैन कंपेयर दिस प्रोसेस विथ आवर रेगुलर प्रिंटर, कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर अटैच होता है उसके साथ अपन ये कंपेयर कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी ऑन दी एनिमेटेड वीडियो, हियर प्रोब है एक, ये प्रोब में से रेड कलर का एक मटेरियल बाहर आ रहा है एंड दैट इज आवर पार्ट, जो पार्ट बनाना है उसका ये रेड कलर का बनेगा। एंड नीचे के तरफ जो टेबल है वो 3D प्रिंटिंग
Hello, sir. Are you there? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Just wait for a minute. Yes, sir. Okay, I have joined from another PC. There was some network issue on that. So let's again start with our
PPT first. Okay, let me know. आपने वीडियो देखा क्या? Because I was discussing video and again that network gone. Okay, you haven't seen video. Animated video नहीं देखा ना आपने? सर वीडियो में वो टेबल का चालू था। हाँ ठीक है ओके सो वीडियो पहले देख लेते हैं देन वी विल डिस्कस हियर ओके सो ये स्लाइड पे थे अपन सो पहले वीडियो देख लेते हैं ओके सो ये प्रोब है जो अपन ने डिस्कस किया था रेड कलर का दिख रहा है यहाँ से एंड उसको मूवमेंट दिया है लेफ्ट राइट मूव हो सकता है बैक एंड फोर्थ हो सकता है एंड अप डाउन भी हो सकता है तो लेफ्ट राइट एंड बैक एंड फोर्थ का जो मूवमेंट है वो कवर करता है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर का जो सर्कल बनेगा आगे जाके ये इस तरीके से तो वो सर्कल का जो विड्थ है एंड जो लेंथ है वो कवर करने के लिए प्रोब का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट राइट एंड बैक एंड फोर्थ होगा जो नीचे का टेबल है 3D प्रिंटिंग मशीन का टेबल वो फिक्स रहेगा वो उसको मूवमेंट नहीं दिया है ठीक है एंड लेंथ एंड विड्थ एक बार बन गया प्रोडक्ट का तो एक लेयर बन जाएगा एंड वो लेयर का जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल होने के कारण अपने को तो चाहिए पूरा सॉलिड पार्ट 3D पार्ट तो उसको लेयर बाय लेयर बनाने के लिए जेड का डायरेक्शन दिया है मतलब अप एंड डाउन का डायरेक्शन दिया है तो ये प्रोब जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोब को जेड एक्सिस दिया है अप एंड डाउन का एंड कुछ मशीन्स होते हैं जिसमें टेबल का मूवमेंट दिया है जेड डायरेक्शन के लिए so this is how that part is manufactured layer by layer so you can see this in animation ये पहला लेयर बन रहा है एंड पहला लेयर बनाने के बाद सेकंड लेयर वो स्टार्ट करेगा सो ये पहला लेयर बन गया अभी उसका लेंथ एंड विड्थ आप देख सकते हो एंड थिकनेस जो है वो निग्लिजिबल है सो वो पार्ट को डिजाइन में जितना भी थिकनेस है ड्राइंग में जितना भी थिकनेस है या जितनी भी हाइट है उसकी प्रोडक्ट की वो बनाने के लिए सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर ऐसे आते जाएंगे सो ये सेकंड लेयर है आफ्टर फिनिशिंग सेकंड लेयर थर्ड लेयर विल स्टार्ट फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर ऐसे करते करते पूरा ये प्रोडक्ट बनते जाएगा ओके सो दिस इज हाउ 3D प्रिंटिंग मशीन्स वर्क उसका प्रोसेस इस तरीके से होता है सो आई गेस बेसिक जो आइडिया है बिहाइंड 3D प्रिंटिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कुछ क्वेश्चंस होंगे डाउट्स होंगे तो आप बीच में पूछ सकते हो नाउ वी विल मूव टू आवर स्लाइड अगेन तो यहाँ पे इस स्लाइड पे अपन डिस्कस कर रहे थे दैट देयर आर वेरियस नेम्स फॉर दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी सो ये अलग अलग नाम क्या है एंड वो किस लिए दिए वो पहले समझ लेते हैं तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये एक उसका अलग नाम है स्टीरियोलिथोग्राफी इज वन ऑफ द नेम 3D प्रिंटिंग इज वन ऑफ द नेम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो वन ऑफ द नेम layered manufacturing
Then solid free form fabrication is also one of the name for this technology. डायरेक्ट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ये भी है, एंड और भी कुछ होंगे. ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर नेम्स है इस टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं. सो ये सारे जो नाम है वो उसके पीछे का जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है वो एक ही है, एंड दैट इज 3D प्रिंटिंग. तो ये अलग अलग नाम क्यों दिए वो देखते हैं पहले से. सो फर्स्ट नेम इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग. तो बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग ये जो नाम है वो किस तरीके से आया, तो उसमें वर्ड है रैपिड. तो सिंस दिस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट रैपिडली, so that's why the rapid is here word. And prototype एक बहुत ही important concept है अगर we are talking about the manufacturing industry. तो कौन सा भी product बनाने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले एक सैंपल बनाया जाता है, जिससे कि वो सैंपल बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग करते हैं कि वो बराबर साइज का बना है कि नहीं, या उसका डायमेंशन बराबर है कि नहीं, उसमें जो मटेरियल यूज किया है वो बराबर है कि नहीं, इज इट राइट फॉर द एप्लीकेशन पर्पस. सो उसका साइज, शेप एंड ऑल द थिंग्स उस पे टेस्टिंग किए जाते हैं. स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्टिंग किया जाता है. तो वो जो सैंपल है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप. तो बेसिकली सैंपल एंड प्रोटोटाइप में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि सैंपल मतलब वो एग्जैक्ट साइज, शेप, एग्जैक्ट मटेरियल का ही होगा, एंड प्रोटोटाइप जो होता है वो सिमिलर होगा. जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर एग्जांपल लेंगे कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ एक बिल्डिंग बनानी होगी बड़ी सी, तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं छोटा सा, जो वो बिल्डिंग के जैसा ही दिखता है. तो बेसिकली उसको प्रोटोटाइप बोल सकते हैं. जो शेप में तो सिमिलर है, उसका साइज एंड सिर्फ साइज अलग होता है, शेप में वो सेम रहेगा, तो उसको बेसिकली प्रोटोटाइप बोलते हैं. तो प्रोटोटाइप में मटेरियल भी अलग हो सकता है, सेम मटेरियल का होगा ऐसे कंपलसरी नहीं है. एंड दिस इज हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप्स. ठीक है, तो ये 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है, आरपीटी जो टेक्नोलॉजी, उसको उसमें प्रोटोटाइप्स भी बनाए जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज यूज्ड फॉर manufacturing prototypes. So that's why this name is there, rapid prototyping. अगला जो नाम है stereolithography. Now this is a technique used in 3D printing or technique used in rapid prototyping to manufacture the solid part. ठीक है, तो ये stereolithography एक टेक्निक है, उसका डिटेल्स आगे जाके देखना है अपने को, so वो देखेंगे बाद में. Next name is 3D printing. Now why 3D? Because the जो भी पार्ट बना रहे अपन वो 3 डायमेंशनल होता है, उसको लेंथ होती है, उसको विड्थ होती है एंड हाइट भी होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज 3D, 3 डायमेंशनल. एंड सिंस इट इज प्रिंटेड लेयर बाय लेयर उसका प्रिंटिंग होता है, दैट्स व्हाई इट इज 3D प्रिंटिंग. ओके, सो सॉलिड पार्ट या 3 डायमेंशनल पार्ट प्रिंट कर रहे हैं अपन, इसलिए उसको, ये टेक्नोलॉजी को 3D प्रिंटिंग भी बोला जाता है. Next name is additive manufacturing. Now this is also interesting name. आप सबको since you all are engineer, so आप सबको मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, बेसिक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, वो सबको पता होगा. जैसे लेथ मशीन यूज करके मैन्युफैक्चर किया जाता है पार्ट, देन मिलिंग मशीन होता है, ड्रिलिंग मशीन होता है, या बाकी के भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जो है, मशीनिंग जो जिसमें किया जाता है, उसमें बेसिकली होता क्या है कि एक रॉ मटेरियल होता है, मे बी अ ब्लॉक, सिलेंड्रिकल ब्लॉक होगा या मे बी रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा. तो वो ब्लॉक में से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है, एंड देन जो वांटेड मटेरियल है, जो चाहिए वहां पे, वो रखा जाता है, एंड देन वो पार्ट बन जाता है. ठीक है, जैसे कि सिलेंड्रिकल पार्ट लिया, तो अगर 30 mm डायमीटर का अपने को सिलेंड्रिकल रॉ मटेरियल है, एंड उसको अपने को रिड्यूस करना है 25 mm डायमीटर पे, तो अपने को 2.5 mm का थिकनेस का जो डायमीटर है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके अपना 25 mm का वो बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि लेथ मशीन पे अगर वो बनाना होगा तो वहां पे जो भी रॉ मटेरियल है उसको
रिड्यूस करना पड़ता है, अनवांटेड मटेरियल वहां से निकालना पड़ता है, तब जाके वो पार्ट बनता है. तो बेसिकली दैट मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग. तो बेसिकली वहां से मटेरियल सब्ट्रैक्ट होता है, रिड्यूस किया जाता है. एंड ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका अभी अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें मटेरियल ऐड किया जाता है. इट्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. सो मटेरियल ऐड कैसे करते हैं? तो जो अपन ने अभी एनिमेटेड वीडियो देखा, उसमें जो टेबल था मशीन का, वो पहले तो पूरा ब्लैंक था. उसमें लेयर 1 ऐड किया गया, बेस का जो लेयर है वो बेस के लेयर पे और एक लेयर ऐड किया गया, एंड लेयर बाय लेयर वो पार्ट बनते गए. सो दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है कि जहां पे भी मटेरियल की जरूरत है वहां पे मटेरियल ऐड करते हैं, एंड जहां पे मटेरियल की जरूरत नहीं है वहां पे मटेरियल ऐड नहीं करते. एंड दिस इज हाउ द पार्ट इज मैन्युफैक्चर्ड. So that's why this manufacturing technology is known as additive manufacturing technology या additive manufacturing. Okay. Next is layered manufacturing. अगला जो नाम है वो layered manufacturing. Since ये जो part है वो layer by layer manufacture होता है, and एक के ऊपर एक layer रखा जाता है, and उस तरीके से वो 3D printing होता है या solid part तैयार होता है. So that's why it is also known as layered manufacturing. Then अगला जो नाम है वो है solid free form fabrication. Solid free form fabrication मतलब एक तो अपन जो पार्ट बना रहे हैं वो solid part है, it's a solid part, जो भी पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो. देन फ्री फॉर्म है, मतलब जहां पे भी मटेरियल की जरूरत है वहां पे मटेरियल ऐड कर रहे हैं, जहां पे नहीं है जरूरत वहां पे नहीं ऐड कर रहे. सो वी कैन मैन्युफैक्चर एनी फॉर्म, एनी पार्ट. तो उसका जो भी शेप है वो मटेरियल का, वो कौन सा भी रहने दो, वो 3D प्रिंटिंग से अपन इजीली मैन्युफैक्चरिंग उसका कर सकते हैं. कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स भी होते हैं जो लेथ मशीन, मिलिंग मशीन या जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है उस पे मैन्युफैक्चर नहीं किए जा सकते, बट दोज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन 3D प्रिंटिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन. तो पार्ट बेसिकली फैब्रिकेट हो रहा है. Okay, and this technology is also known by direct digital manufacturing. Direct digital manufacturing मतलब एक तो ये डायरेक्ट टेक्निक है, मतलब जो भी डिजाइन होगा, जिसका भी डिजाइन का इनपुट देंगे मशीन को, तो वो एज इट इज बन जाएगा. इट्स अ डिजिटल बिकॉज वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड डिजिटल मीडिया, एंड इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग. Okay, so that's why this is also known as direct digital manufacturing. तो जो भी डिजाइन है वो डायरेक्टली अपने को पार्ट में मिल जाता है एज अ सॉलिड पार्ट. That's why it is known as direct digital manufacturing. So these are the various names for 3D printing technology or rapid prototyping technology. Now we will move on further if you don't have any doubts. Okay, so in this slide we can see different parts. Those are manufactured by 3D printing technology. So it's totally automated 3D printing, and since it is totally automated, तो उसके काफी सारे advantages होते हैं. and यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग parts जो 3D printing से बनाए गए वो दिखाए गए यहाँ पे. So this is one of the part, प्लास्टिक पार्ट है ये. प्लास्टिक का जो 3D प्रिंटिंग का मशीन है उससे बनाया गया है. मेटल का जो पार्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको. मेटल का जो मशीन होता है 3D प्रिंटिंग का, उससे ये बनाया गया है. मेटल के लिए अलग सा मशीन होता है एंड प्लास्टिक के लिए अलग सा होता है, वो आगे जाके देखेंगे अपन. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. So if we look these parts in detail, you can see the geometric dimensions and its material. बाहर का जो बाउंड्री का जो पार्ट, उसका फिनिश है, उसका जो शेप है अलग अलग, वो देख सकते हो. एंड इनफैक्ट दिस टेक्नोलॉजी आल्सो टेक्स केयर ऑफ इंटीरियर. अंदर का जो कुछ डिजाइन होगा उसका मटेरियल का या वो पार्ट का, तो वो भी
इससे कंट्रोल किया जा सकता है. So you can observe these pictures, different pictures. So अगर असेंबली का पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे आप स्पैनर देख सकते हो, ये तो स्पैनर में क्या होता है कि ये जो छोटा सा पिनियन है उसको अगर हाथ से रोटेट करेंगे तो ये जो प्रोब्स है वो उसका जो डिस्टेंस है, इन बिटवीन डिस्टेंस, वो कम ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पार्ट्स आर आल्सो मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. तो उसको भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ पार्ट्स अगर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे तो उसको क्या है कि स्पैनर अलग से बनाना पड़ेगा, ये पिनियन अलग से बनाना पड़ेगा, ये जो मूविंग पार्ट है ये अलग सा बनाना पड़ेगा, एंड देन तीनों चारों को असेंबल करके फिर ये पूरा पार्ट बनेगा. बट 3D प्रिंटिंग में एक ही सेटअप में ये पूरा पार्ट बन सकता है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. Hello. Yes. Sir, my question is that if we use the 3D printing, the advanced sophisticated technology, so can we make the parts with the help of the nanocomposites and composite materials? Okay. Into the 3D printing? Yes. अभी अपन जो डिस्कस कर रहे 3D प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे, बेसिकली इसमें दो टाइप के मटेरियल, ब्रॉडली अगर बोलेंगे तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं. एक तो होता है मेटल का, दूसरा होता है प्लास्टिक का. ठीक है, अभी आगे जाके अपने को डिफरेंट टेक्निक्स जो है या उसमें जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, उसमें टेक्निक्स यूज करते हैं, वो देखने हैं अपने को, जिसमें अलग अलग मटेरियल्स का भी यूज किया जाता है. तो आज का तो अपना इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसलिए यहाँ पे उतना पार्ट कवर नहीं कर सकते. बट कल का या परसों का जो सेशन रहेगा उसमें अपन को देखना है. अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो नैनो पार्टिकल्स एंड मटेरियल्स होते हैं उसका यूज करके 3D प्रिंटिंग किया जा सकता है कि नहीं, तो आगे जाके इसी स्लाइड के आगे जाके अपने को जो मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निक है कि किस तरीके से ये काम करता है वो देखना है. अगर वो सेटिस्फाई हो गया क्राइटेरिया तो वो भी मटेरियल उसमें यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, बेसिकली अभी तक का जो यहाँ पे फाइंडिंग्स है या डेवलपमेंट हुआ है 3D प्रिंटिंग में, तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स आते हैं. जैसे FDM इज वन ऑफ द टेक्निक. FDM का फुल फॉर्म है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग. तो वो एक टेक्निक है. देन SLA करके एक टेक्निक है. देन आगे मेटल का भी अलग अलग टेक्निक्स है, वो देखने हैं अपने को. तो बेसिकली उसका जो मटेरियल होता है, जैसे अगर प्लास्टिक का पार्ट लेंगे तो प्लास्टिक में ABC जो मटेरियल है तो वो यूज किया जाता है. एंड मेटल का अगर देखेंगे तो उसमें लेजर मेटल का पाउडर होता है, छोटा सा बारीक सा, एंड वो यूज किया जाता है एक पार्ट बनाने के लिए. तो बेसिकली वो जो नैनो पार्टिकल्स है वो अगर इस टेक्निक्स में अगर आ सकते हैं, जो भी आप बात कर रहे हो नैनो पार्टिकल्स की, तो वी कैन टेक दोज मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स. ठीक है, आगे जाके देखेंगे जैसे ही अपना सेशन खत्म होगा वहां तक आप जो टेक्निक्स देखने वाले हैं वहां पे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा ये. ठीक है. Okay, sir. ओके. सो अपने पास टाइम कम होने के कारण थोड़ा फास्ट यहाँ से जाते हैं. ये सब पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए अलग अलग. जियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है पार्ट्स की वो भी इससे टेकन केयर की जाती है. जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग पे पॉसिबल नहीं है वो भी यहाँ पे इजीली मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इसके जो लिमिटेशंस है ये टेक्निक के वो भी आपने को लास्ट में डिस्कस करने हैं, वो भी देखेंगे अपन. यू कैन सी दी डिफरेंट फोटोज की मेडिकल सेक्टर में भी उसका काफी हद तक यूज किया जाता है. सर 3D प्रिंटिंग मधनं एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर कॉस्ट त्याला बनवायला जास्त लागते का कमी लागते? ओके, याचं पण मी सांगतो. आपला आजचं इंट्रोडक्टरी सेशन असल्यामुळे
मी तुम्हाला एक इन जनरल आयडिया देतो फक्त कॉस्टिंग बद्दल. अँड उद्या आणि परवा डिटेलमध्ये तुमचे जे सेशन्स होणार आहे त्यात कॉस्टिंगचा पार्ट येईलच डिटेलमध्ये. बट इफ वी कंपेयर दी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड 3D प्रिंटिंग, ठीक है, ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बेसिकली वहां पे कैसा होता है ट्रेडिशनल में, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन, ऐसे अलग अलग टेक्निक प्रोसेसेस होते हैं. तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक या दो पार्ट बनाना नहीं होता है, या 100 पार्ट्स भी नहीं बनते. वहां पे जो पार्ट्स बनते हैं वो थाउजेंड्स या लैक्स में बनते हैं, जैसे कि नट बोल्ट्स हो गए. ठीक है, तो एक बोल्ट को अगर आपने लिया, कंसिडर किया, बोल्ट को अगर बनाना है ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से एंड उसी सेम बोल्ट को बनाना है 3D प्रिंटिंग से, ठीक है, कंपेयर अगर वैसा करेंगे तो मास प्रोडक्शन में जो बोल्ट बनता है, आप सबको पता है नट बोल्ट्स बनाने का जो कॉस्टिंग है, अगर वो मास प्रोडक्शन में लेंगे तो इन जनरल अगर बात करेंगे तो एक नट या एक बोल्ट बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा, राइट, मास प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो. एंड उसी प्रोडक्ट को, सेम साइज एंड शेप का प्रोडक्ट को अगर 3D प्रिंटिंग में बनाएंगे तो वो 2000-3000 में बनेगा. सेम बोल्ट एंड उसका साइज एंड शेप सेम रखेंगे तो भी 3-4 हजार, 5 हजार भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल. ठीक है, तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग जो टेक्निक है वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते इस तरीके से. तो बेसिकली मास प्रोडक्शन करने से पहले, इसका पहले भी अपन ने डिस्कशन किया था कि मास प्रोडक्शन करने से पहले एक सैंपल बनाया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है. वो प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जाता है, वो अगर ओके है देन वी कैन स्टार्ट विद द मास प्रोडक्शन. ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए अभी बेसिकली मास प्रोडक्शन जो करते हैं, जो भी कंपनियां करती है, तो उसमें क्या होता है कि डाई बनाना पड़ता है, एक सेटअप लगाना पड़ता है मास प्रोडक्शन के लिए. वो 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है, उसपे काफी एनालिसिस करके, उसपे काफी रिसर्च करके देन मास प्रोडक्शन का सेटअप बनता है. तो उसका जो कॉस्ट है ये सब करने के लिए, तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मास प्रोडक्शन का जो सैंपल बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो वो सैंपल को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो काफी ज्यादा होता है, मे बी वो लैक्स में रहता है. वो 1 रुपए का या 2 रुपए का नट या बोल्ट है, उसका सैंपल बनाने के लिए ज्यादा कॉस्ट लगता है, बिकॉज उसके लिए डाइज बनाने पड़ते हैं, मशीन का सेटअप लगाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है एंड सारी ये चीजें होती है. तो सिमिलर सैंपल या सिमिलर प्रोटोटाइप को अगर 3D प्रिंटिंग में बनाया जाए, ठीक है, तो वो बनाने के लिए 1 या 2 हजार रुपए ही लगेगा. तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग टेक्निक जो है या 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए होती है, ना कि मास प्रोडक्शन के लिए होती है. तो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग का थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, राइट? यस सर, यस सर. ओके, तो डिटेल में आपको कल या परसों और डिटेल में कॉस्टिंग के ऊपर आ जाएंगे सर, उस तरीके से देखेंगे आप. सर यानी कि हम मास प्रोडक्शन के अंदर अगर फाइनाइट कंपोनेंट्स अगर हम बनाना चाहते, मोर देन कंपोनेंट्स बनाना चाहते, तो हम नहीं जा सकते फिर 3D नहीं, 3D प्रिंटिंग यूज नहीं कर सकते फिर उस टाइम. बराबर. Good evening, sir. यस. Sir, we can manufacturing intricate shape by using these manufacturing methods. मतलब कैसा? Difficult Complex. shapes like complex shape. कॉम्प्लेक्स शेप बोल रहे हो ना? जैसे अभी देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे एक इंजन ब्लॉक है, यहाँ पे देखो रेड मार्क किया मैंने, ऐसे ही कुछ बोल रहे हो क्या? Yes, yes. Bajaj Auto. राइट, राइट. तो एक्चुअली मैं इसका भी कंपैरिजन बताऊं, जैसे कॉस्टिंग का अपन ने कंपैरिजन किया विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड 3D प्रिंटिंग. तो ये ऐसे जो शेप्स होते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स शेप अगर आपको ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बनाने हैं तो उसके लिए आपको एक तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, उससे तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो इसके लिए आपको एक तो CNC VMC मशीन्स यूज करने पड़ेंगे जो ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, एंड उसमें भी काफी लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग शेप एंड कॉम्प्लेक्स शेप्स है एंड कर्वेचर्स है अलग अलग.
डायमीटर्स है, ड्रिलिंग्स है, तो ये सब अलग अलग एंगल्स पे भी है वो, ठीक है। तो ये सब मैनेज करने के लिए एक हाईफाई मशीन होना चाहिए, जैसे सीएनसी वीएमसी मशीन, एंड दैट टू सीएनसी 3 एक्सिस या 2 एक्सिस से काम नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए चाहिए 5 एक्सिस 7 एक्सिस मशीन्स, ठीक है। तो उस तरीके से मशीन्स का यूज करके फिर ये पार्ट बनाया जा सकता है। बट 3D प्रिंटिंग में सेम मशीन, मतलब 3D प्रिंटिंग का सेम सेटअप रहेगा, उसी में ये पार्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ठीक है। अभी कंपैरिजन अगर करेंगे 3D प्रिंटिंग का एंड ट्रेडिशनल का, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल में जो सीएनसी मशीन का यूज करके ये पार्ट बनाएंगे इंजन ब्लॉक, तो उसमें जो मटेरियल यूज करेंगे वो जो डिजाइन किया हुआ मटेरियल है, जैसे कि स्टील या जो कास्टेड पार्ट होगा कास्ट आयरन का, वो यूज करेंगे, एंड उसका जो स्ट्रेंथ है या उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो काफी हद तक अपने को जो चाहिए उसको मैच होंगे। एंड इसी को अगर 3D प्रिंटिंग में बनाया जाए, 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि मेटल का पाउडर होता है, मेटल का पाउडर फ्यूज्ड करके फिर ये सॉलिड पार्ट बनता है। तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका 3D प्रिंटिंग का पार्ट का स्ट्रेंथ एंड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से बनाया हुआ स्ट्रेंथ, उसमें काफी डिफरेंस रहेगा। तो ट्रेडिशनल में जो पार्ट बनाएंगे उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा रहेगा, उसके प्रॉपर्टीज अच्छे रहेंगे, एंड 3D प्रिंटिंग में जो बनाएंगे उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा, उसमें कम स्ट्रेंथ रहेगा, वो जल्दी फेल हो सकता है, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा वो पार्ट। सो बेसिकली 3D प्रिंटिंग जो टेक्निक है वो यूज की जाती है प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए, सैंपल्स बनाने के लिए। तो उसको जो अपने रेगुलर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग या सीएनसी वीएमसी का मैन्युफैक्चरिंग, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक ये आपका आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चंस है? आवाज नहीं आ रहा है आपका सर। थ्रेड्स बना सकते हैं क्या हम? थ्रेड्स? हाँ, थ्रेड्स भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसी पिक्चर में, ये जो थ्रेडिंग किया हुआ है, तो ये भी बना सकते हैं अपन बाय यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सर हम एक्सटर्नल डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल भी डिजाइन होता है क्या इससे? यस, इंटरनल भी डिजाइन होता है। मतलब इंजन ब्लॉक है उसके अंदर का, मतलब जो पार्ट। हाँ, वो भी होता है। हाँ, इंजन ब्लॉक की अगर बात करेंगे, अभी इंजन ब्लॉक में कैसा होता है कि इंजन ब्लॉक में सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर में फिर अपना अलग अलग उसमें सेटअप होता है, जैसे पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग्स हो गए, कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो ये जो पार्ट्स है ये बना तो सकते हैं 3D प्रिंटिंग से, लेकिन 3D प्रिंटिंग से वो वर्क नहीं करेगा। 3D प्रिंटिंग से जो पार्ट बनाएंगे वो पार्ट अगर किसी ऑटोमोबाइल में जाके फिट कर देंगे तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेंथ एंड बाकी के स्पेसिफिकेशंस। ओके सर, दैट्स द डिफरेंस। तो वही बोल रहा हूँ, 3D प्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रोटोटाइप्स। वो जैसे अपना कंस्ट्रक्शन में होता है ना, कंस्ट्रक्शन का मैंने एग्जांपल किया कि एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं छोटा सा, एंड वो टेबल पे रखते हैं मॉडल, एंड उसको फिर उसका फीलिंग लेते हैं कि वो कैसे दिखेगा, कैसे होना चाहिए, एंड फिर उसके हिसाब से फिर कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। तो सेम इज द केस फॉर 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में प्रोटोटाइप या सैंपल बनाएंगे एंड उस पे टेस्टिंग करके या उसका यूज करके फिर अगर वो ओके है, देन वी कैन गो फॉर द बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। ओके, आगे के स्लाइड्स पे आप देख सकते हो और भी कुछ पार्ट्स है। हेलो। हाँ सर, हम जब 3D प्रिंटिंग से एक प्रिंट बनाते हैं तो नीचे का बेस जो है वो हमेशा फ्लैट ही होता है क्या? 3D प्रिंटिंग से क्या बनाते हैं? नीचे का बेस सर, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, उसका नीचे का फ्लैट ही रहता है क्या उसको? हाँ, फ्लैट ही रहता है। तो ठीक ये है, अभी यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पूछा ही है, तो मैं एक यहाँ पे आपको बताता हूँ आगे जाके। जस्ट अ मिनट।
ओके, वी कैन डिस्कस हियर। तो इस इमेज में आपको देखो एक घर दिख रहा है, ठीक है। अभी आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि वो 3D प्रिंटिंग का जो बेस है, टेबल है, वो हमेशा फ्लैट होता है क्या? तो जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन होते हैं, उसका सेटअप चेंज नहीं करते, वैसे ही 3D प्रिंटिंग मशीन का होता है। 3D प्रिंटिंग का भी मशीन का सेटअप चेंज नहीं करते, बट उसमें क्या होता है कि जैसे ये ओवरहैंगिंग पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज द ओवरहैंगिंग पार्ट। इनफैक्ट यहाँ पे जो छत है, ये घर का छत, ये भी ओवरहैंगिंग दिख रहा है आपको, मतलब इसके नीचे कुछ भी सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है, नहीं दिख रहा है अपने को। एंड आपने जो एनिमेटेड वीडियो देखा उसमें क्या था कि पहले बेस का लेयर बनाया, जैसे कि ये नीचे का बेस है, ये बनाया, फिर उसके ऊपर और एक लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर करते गया वो। बट सिंस दिस इज ओवरहैंगिंग, मतलब इसके नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि ये जो मटेरियल है, ये ओवरहैंगिंग मटेरियल, तो उसको हवा में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, बराबर, उसको किसी न किसी चीज पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि जो बेस है मशीन का वो फ्लैट ही रहता है, बट इसके नीचे एक सपोर्टिंग मटेरियल डिपॉजिट होता है, एक सपोर्टिंग मटेरियल डिपॉजिट होगा, सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर फिर 3D प्रिंटिंग मटेरियल का डिपॉजिट होगा, जो एक्चुअल मटेरियल है वो। तो इसका एक्चुअली ये इमेज से भी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो सर्च करता हूँ मैं यूट्यूब पे, जिससे कि आपको और भी इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। थ्री प्रिंटिंग ऑफ ओवरहैंगिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ से देखते हुए वीडियो मिलता है क्या अपने को? In this video, I would like to explain what is overhanging in 3D printing. Or if you want a bigger angle, as to watch especially Just a when you minute, are. मैं दूसरा वीडियो देखता हूँ because we need some animation. Hey guys, today we're going over robotics. Now this is really critical if you have Okay, so complex geometries where there's a part comes up. आप देख सकते हो ये 3D प्रिंटिंग का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो है जो दिखाया जा रहा है। सो इन दिस लेयर बाय लेयर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, देखो पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो पार्ट है, तो समझो ये ओवरहैंगिंग पार्ट है। अभी ये जो पार्ट बन रहा है, ये इसका लास्ट का पार्ट देखते हैं अपन क्या है वो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर का जो है वो सपोर्ट मटेरियल है एंड ब्लू कलर का जो है वो एक्चुअल पार्ट है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट मटेरियल को पहले डिपॉजिट करते हैं एंड देन ब्लू कलर का जो ओवरहैंगिंग पार्ट है उसके ऊपर फिर मटेरियल डिपॉजिट, एक्चुअल मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है। तो 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि जो प्रोब दिखाया था स्टार्टिंग में, वो प्रोब में दो आउटपुट्स होते हैं। तो एक प्रोब में से, मतलब एक आउटपुट में से एक्चुअल जो मटेरियल है जिसका वो प्रोटोटाइप बनाना है, जिसका वो पार्ट बनाना है, वो निकलता है। एंड दूसरा जो आउटपुट है उसमें से सपोर्टिंग मटेरियल निकलता है। तो जब भी सपोर्टिंग मटेरियल की जरूरत होती है ओवरहैंगिंग पार्ट के लिए,
तो वो सपोर्टिंग मटेरियल डिपॉजिट करते हैं एंड देन उस सपोर्टिंग मटेरियल के ऊपर फिर वो ओवरहैंगिंग पार्ट आ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और कुछ सिंपल वीडियो है क्या देखता हूं मैं, या फिर वी विल कंटिन्यू विथ आवर स्लाइड। ये एक अलग टाइप के 3D प्रिंटिंग मशीन आप देख सकते हो, स्मॉल साइज 3D प्रिंटिंग मशीन से, जिसका ये ब्लैक कलर का जो है ये बेस है एंड ऊपर के तरफ प्रोब एंड उसका एडजस्टमेंट दिया है। तो बेसिकली जो मटेरियल होता है वो एक रील में होता है इस तरीके से, एंड वो रील में से उसका प्लास्टिक का जो वायर है वो प्रोब में जाता है, प्रोब में वो हीट होता है, हीट होने के वजह से उसका पेस्ट क्रिएट होता है एंड वो पेस्ट को ये टेबल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। तो जहाँ पे भी मटेरियल का जरूरत है वहां पे पेस्ट को डिपॉजिट करते हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे पेस्ट नहीं होता, एंड इस तरीके से वो लेयर बाय लेयर तैयार होते जाता है। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं, आगे जाके फिर डिटेल में देखेंगे। तो हियर कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डिस्कस किया है। जैसे कि अपन ने जो डिस्कस किया था कि मास प्रोडक्शन में नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए जाते हैं सिमिलर टाइप के, एंड 3D प्रिंटिंग में एक ही बनाते हैं लेकिन वो प्रोटोटाइप कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, मैं हाईलाइट करता हूँ। सो एक कप बनाने के लिए, अगर कप बनाने के लिए मास प्रोडक्शन का सेटअप है तो उसमें सिमिलर टाइप के कप ही बनेंगे, बराबर। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि लेट से वो कप जो है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है, यहाँ पे एक दूसरा है एंड यहाँ पे तीसरा भी है। तो एक ही कप को तीन पकड़ने के लिए सपोर्ट अगर देने हैं तो वो ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है मास प्रोडक्शन का उसमें पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज उसके डाइस जो होते हैं, मोल्ड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी रेडी है, वो ऑलरेडी उस तरीके से डिजाइन किए कि जिसमें एक ही सपोर्ट रहेगा एंड उस हिसाब से वो कप को मैन्युफैक्चर किया जाता है मास प्रोडक्शन में। बट इन 3D प्रिंटिंग we can do anything, we can play with that part, we can manufacture anything as per our design, and वो अलग अलग प्रोटोटाइप्स या अलग अलग सैंपल्स बना के उसका टेस्टिंग करते हैं, उसको यूज करके देखते हैं एंड जो भी उसमें से अच्छा रहेगा, ओके रहेगा, वो मास प्रोडक्शन के लिए फिर भेजा जाएगा। सो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग डिफर्स। तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग जो है ट्रेडिशनल, उसके लिए लगता है रिक्वायर्ड टूल्स टू प्रोड्यूस दी पार्ट्स। अलग अलग टूल्स लगते हैं, जैसे कि ये मोल्ड हो गया या डाई हो गया या टूल्स हो गए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स एक्सेट्रा, एंड उसमें सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। बट इसमें क्या होता है कि वी कैन डायरेक्टली मैन्युफैक्चर दैट पार्ट फ्रॉम द CAD मॉडल एंड वी हैव द 3D प्रिंटेड पार्ट एंड दैट इज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, बहुत से पार्ट्स इसमें से अपन ने डिस्कस किए थे ऑलरेडी। सो 3D प्रिंटिंग हैज द एनालॉजी विद प्रिंटिंग, जो अपना रेगुलर प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग का काम चलता है पेपर पे। सो इट्स अ 2D प्रिंटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3D प्रिंटिंग। सो 2D प्रिंटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर से अपन प्रिंटर की कमांड देते हैं एंड जो भी प्रिंटर है उस पे
एक पेपर पे प्रिंट होके आता है, बराबर, तो वो एक ही लेयर होता है जिसको लेंथ एंड विड्थ तो रहती है बट थिकनेस नहीं रहता. सो इन 3D प्रिंटिंग वी आर गिविंग थिकनेस टू दैट पार्ट एंड वी गेट द सॉलिड मॉडल आउट ऑफ इट. सो यहाँ पे दिखाया देखो पिक्चर में, दिस इज द 2D प्रिंटर एंड दिस वन इज द 3D प्रिंटर. सो 2D प्रिंटर से पेपर पे प्रिंट निकलता है जिसको लेंथ एंड विड्थ रहती है बट थिकनेस कुछ भी नहीं रहता, नेग्लिजिबल रहता है. एंड इन 3D प्रिंटिंग वी गेट लेंथ, वी गेट विड्थ एज वेल एज वी गेट द हाइट. दिस इज द डिफरेंस. हाँ, यहाँ पे सपोर्ट मैकेनिज्म का दिया है देखो. सो जैसे कि ओवर हैंगिंग पार्ट होता है, ये एक पानी की टंकी है जिसका एक बीच में एक पिलर है बड़ा वाला एंड ऊपर जाके ये हैंगिंग ओवर हैंगिंग पार्ट है. तो वो पार्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के वक्त जैसे ये स्केलेटन बनाया जाता है, बाम्बू का स्केलेटन बनाया जाता है जो सपोर्ट की तरह काम करता है. उसी तरीके से 3D प्रिंटिंग में भी जो भी ओवर हैंगिंग पार्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सपोर्ट मटेरियल को डिपॉजिट किया जाता है एंड वो सपोर्ट मटेरियल के ऊपर फिर एक्चुअल जो पार्ट का मटेरियल है वो डिपॉजिट करके फिर वो पार्ट बनता है. दिस इज हाउ द ओवर हैंगिंग पार्ट्स आर हैंडल्ड. एनी क्वेश्चंस? ये सम ऑफ दी प्रिंटर्स है, 3D प्रिंटर्स, अलग अलग 3D प्रिंटर्स. कुछ क्लोज टाइप के होते हैं, मतलब वो पूरे कवर्ड होते हैं इस तरीके से, एंड कुछ ओपन टाइप होते हैं. तो बेसिकली अंदर का जो प्रोब है उसको मूवमेंट दिया जाता है. स्लाइडर्स होते हैं ये, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर्स. तो स्लाइडर्स का यूज करके लेफ्ट राइट मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट एंड अप डाउन मूवमेंट, तो तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट देने के लिए 3D मूवमेंट उसको देने के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसको मूवमेंट देने के लिए ये स्लाइडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रोब को. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. हाँ सर, हमने जब पार्ट मैन्युफैक्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, तो सर उस पार्ट को हम एनालिसिस कैसे करेंगे सर? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन. अभी बेसिकली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो होता है वो होता है पार्ट्स बनाने के लिए. जैसे कि इस पिक्चर में दिखा है देखो, तो इस पिक्चर में क्या दिखा है कि ये पार्ट बन गया एंड एक बार वो पार्ट बना के 3D प्रिंटिंग से बाहर निकला तो 3D प्रिंटिंग मशीन का काम हो गया. ठीक है, उसका कंसेप्ट या उसका जो भी वर्क इन्वॉल्वमेंट है 3D प्रिंटिंग मशीन का, वो वहां पे खत्म हो गया. अभी स्टार्टिंग में अपन ने देखा था CAD CAM CAE. तो CAD CAM CAE में क्या होता है कि CAD में ड्राइंग बनता है या डिजाइन बनता है, CAM में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड CAE में एनालिसिस होता है. ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से हर एक के लिए. तो बेसिकली 3D प्रिंटिंग जो टेक्निक है या 3D प्रिंटिंग मशीन जो है वो बेसिकली आता है CAM में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में. तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में एक बार वो पार्ट बन गया तो वो पार्ट को जैसे कि समझो अपन ने एक बोल्ट बना लिया 3D प्रिंटिंग से, तो वो बोल्ट का जहां पे भी यूज होने वाला है, जहां पे भी एप्लीकेशन है उसका, जैसे कि ऑटोमोटिव में अगर एप्लीकेशन है, गाड़ी का जो टायर होता है वो टायर व्हील होता है, गाड़ी का व्हील, वो व्हील को फिक्स करने के लिए बोल्ट्स यूज किए जाते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स यूज किए जाते हैं. तो समझो वो बोल्ट का वहां पे एप्लीकेशन है, तो सेम बोल्ट को अगर 3D प्रिंटिंग में बनाया तो वो 3D प्रिंटिंग से बनाया हुआ बोल्ट को लिया जाएगा, वो गाड़ी का जो भी व्हील है जहां पे भी वो बिठाना है उसमें वो फिट किया जाएगा एंड फिट करने के बाद वो अच्छे से फिट होता है क्या वो चेक किया जाएगा. वो फिट होने के बाद वो कितना बाहर रहता है, उसका जो बोल्ट का हेड है वो बाहर कितना रहता है, या फिर वो फिट करते वक्त उसमें कुछ गैप रहता है कि नहीं. ये छोटे छोटे जो चीजें जिसको एक्चुअल प्रोटोटाइप या सैंपल बनाने के बाद टेस्टिंग किया जाता है, इस तरीके से चेक करके फिर मास प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है. तो इस तरीके से उसका टेस्टिंग होता है. लेकिन 3D प्रिंटिंग का जो बोल्ट बनाया जाता है, 3D प्रिंटिंग में बोल्ट अगर बनाते हैं सैंपल, तो उसका जो मटेरियल है वो एक तो प्लास्टिक रहेगा या मेटल रहेगा. प्लास्टिक रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी. मेटल का भी रहेगा
तो भी वो पाउडर से बनाया जाता है, पाउडर का मेटल होता है, उसको फ्यूज किया जाता है, मतलब सॉलिड में क्रिएट करते हैं उसको, एंड देन वो पार्ट बनता है। तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ कम रहने वाला है, तो वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा, एंड उसका टेस्टिंग अगर ओके आया तो फिर आगे जाके मास प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आंसर मिल गया क्या? यस सर, मैं वही चाहता था कि जैसे हमने सीए पढ़ा आगे कि सॉफ्टवेयर हाँ। बेसिस पे सीए पे हम एनालिसिस करते, हाँ, ये तो हाँ। फिजिकल है, तो इसको हम कैसे ये मुझे नहीं आंसर अभी नहीं, 3D प्रिंटिंग सिर्फ कैम, मतलब कैम में सिर्फ 3D प्रिंटिंग आता है, तो सीएई के लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स रहेंगे ऑब्वियसली, राइट? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर क्या हम सीए से इसका एनालिसिस, जैसे हमने मटेरियल सिलेक्शन कर लिया हाँ। प्रोटोटाइपिंग, तो क्या हम हाँ। प्रायर स्टेजेस पे रहेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से पहले, कैड से जब हमने डिजाइन निकाली तो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना? बराबर। एनालिसिस। हाँ हाँ, यस ऑब्वियसली वी कैन डू द एनालिसिस, राइट? ओके, आगे जाते हैं अभी। ओके, नाउ यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है, इसमें देखो कि 3D का जो कैड मॉडल है वो पहले बनता है यहाँ पे। सो 3D कैड मॉडल इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड। उसका जो मॉडल का एक्सटेंशन होता है, आप सभी ने काम किया होगा, ऑटो कैड पे काम किया होगा, कटिया, यूजीएनएक्स या प्रोई में काम किया होगा आपने, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो अलग अलग होता है, बराबर, फाइल का एक्सटेंशन। लेकिन 3D प्रिंटिंग में वो फाइल को यूज करने के लिए, ये कैड मॉडल को यूज करने के लिए उसका जो कन्वर्जन होता है वो चाहिए अपने को STL फाइल, .stl। अभी .stl में क्या होता है बेसिकली, वो जो 3D मॉडल है, जस्ट अ मिनट, बेसिकली ये जो 3D मॉडल है उसको कन्वर्ट किया जाता है स्लाइसेस में। मतलब ये जो 3D मॉडल जो दिख रहा है अपने को, उसके नंबर ऑफ स्लाइसेस बनाए जाते हैं, जो हर एक स्लाइस का जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल रहता है, एंड इस हिसाब से नंबर ऑफ स्लाइसेस बनाने के बाद, ऐसे नंबर ऑफ स्लाइसेस बनाने के बाद वो जो फाइल बनता है दैट इज .stl फाइल। एंड वो .stl फाइल ये बेसिकली बनता है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में, अभी जो मैंने बताया स्लाइसेस का वो बनता है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में .stl फाइल, एंड फिर वो यूज किया जाता है, लेयर वाला फाइल यूज किया जाता है 3D प्रिंटर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्लाइसेस बनते हैं वो 3D मॉडल के, एंड एक एक स्लाइस जो है, जिसको लेंथ रहेगा, जिसको विड्थ रहेगा, लेकिन थिकनेस नहीं रहेगा, तो वो एक एक स्लाइस 3D प्रिंटर पर फीड किए जाते हैं, एंड देन 3D प्रिंटर क्या करता है, उसका जो प्रोब है वो लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से मेटल डिपॉजिट करेगा, एंड देन लेयर बाय लेयर वो पार्ट हो जाएगा। कैड मॉडल से लेकर 3D ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड देन वी गेट द 3D ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो। सर उसका एक्टिव कितना रहता है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रहेगा उतना उसका हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने पूछा कि उसका एक्टिव कितना रहता है? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट गेट योर क्वेश्चन। आनंद रामगुड़े प्लीज म्यूट। सायकल भेटते ना रेड कलरची, ती भेटती ना, त्याच्या बरोबर दुसरी घेतली ना, माइक वो बंद कर सकते हैं क्या? मी घेतली ती, माझी चॉईस होती ती फॅन्टम, मी चॉईस केली। ओके, सर मेरा क्वेश्चन था कि उसका मिनिमम एक्यूरेसी कितना रहता? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी एक्यूरेसी का जो पार्ट है वो कल एंड परसों को आपको डिटेल में दिखाया जाएगा, मतलब डिस्कस किया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आई कैन आंसर कि स्टार्टिंग में अपन ने जो एनिमेशन देखा कि लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो एक लेयर का जितना थिकनेस है, अभी वो निग्लिजिबल बोलने के लिए है, ठीक है,
लेकिन कुछ ना कुछ तो थिकनेस रहेगा उसका, राइट? तभी वो लेयर डिपॉजिट होगा। तो वो लेयर का जितना थिकनेस है उतना उसका एक्यूरेसी, ठीक है। एमएम में अगर बात करेंगे डायमेंशन में, तो अराउंड 0.1, 0.2 mm, 0.3 mm इतना उसका एक्यूरेसी रहता है एक लेयर का। सर मिनिमम कितना रहता मतलब? 0.1 mm। अच्छा, हाँ, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट मेथड्स है सॉलिड बेस के, लिक्विड बेस के एंड पाउडर बेस के। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्लास्टिक का अगर पार्ट बनाना है तो उसके लिए अलग मेथड होता है, मेटल का पार्ट बनाना है तो उसके लिए अलग होता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सॉलिड बेस्ड जो मेथड्स है उसमें एक आता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, एफडीएम करके है। लिक्विड बेस्ड में आता है स्टीरियो लिथोग्राफी, एसएलए करके, एंड पाउडर में आता है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो बेसिकली एक एक अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट इंट्रोडक्शन का जो सेशन है अपना यहाँ पे फिर ये स्लाइड पे खत्म होगा। तो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग का जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि इट्स अ एफडीएम जनरली उसको बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको एक पिक्चर ओपन कर देता हूँ इसका, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ये एफडीएम का ये एक पिक्चर है। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट सेटअप। इसमें क्या है कि एक टेबल है नीचे की तरफ, वो टेबल फोम का बेस होता है नीचे की तरफ, एंड उसके ऊपर ये पार्ट मैन्युफैक्चर किया है। तो ब्लू कलर का जो है, डार्क ब्लू कलर का, दैट इज द पार्ट, एंड फेंट ब्लू कलर का जो है वो सपोर्ट्स है। ओवरहैंगिंग का जो अपन ने डिस्कस किया था पहले वो है ये, ओवरहैंगिंग का सपोर्ट है ये। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो फोम बेस रखा जाता है, एंड रील होता है जिसमें मटेरियल होता है। अभी उसमें दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक एक्चुअल मटेरियल ये डार्क ब्लू कलर से दिखा है, एंड एक सपोर्ट का मटेरियल। तो दो रील होते हैं वहां पे। तो जब भी एक्चुअल मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो ये डार्क ब्लू कलर का एक्टिवेट होता है प्रोब, एंड वहां से मटेरियल नीचे डिपॉजिट होता है। एंड जब भी सपोर्ट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उस टाइम ये फेंट ब्लू कलर का जो प्रोब है, मटेरियल का प्रोब, वो एक्टिवेट होगा एंड उससे सपोर्ट मटेरियल डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोब है ये मूव होता है लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ, एंड टेबल का जो मूवमेंट है वो अप डाउन हो सकता है, एंड इस तरीके से फिर एफडीएम काम करता है। तो बेसिकली एफडीएम में क्या होता है कि जब भी मटेरियल डिपॉजिट करना है तो रील से मटेरियल को खींचा जाता है प्रोब में वो हीट किया जाता है, यहाँ पे हीटिंग होगा। हीटिंग होने के बाद वहां से पेस्ट बाहर निकलेगा एंड वो पेस्ट डिपॉजिट होगा लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो इसी का जूम करके या अंदर का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे दिखा है अलग से राइट साइड पे। तो ये रोलर्स होते हैं, जब भी जरूरत होती है तो रोलर्स रोल होंगे, एंड वो ये जो वायर है प्लास्टिक का वायर उसको प्रोब में भेजेंगे। प्रोब में यहाँ पे हीटिंग होता है, दीज आर द लिक्विफायर्स, एंड हीटिंग होने के बाद उसका जो पेस्ट है वो प्रोब से बाहर निकलेगा एंड ये फोम बेस पे वो डिपॉजिट होगा, राइट। दिस इज हाउ एफडीएम वर्क्स। तो ब्लू कलर का जो एक्चुअल मटेरियल है उसका भी इसी तरीके से वर्किंग होता है, एंड फेंट कलर का जो है ये ब्लू, उसका भी सेम वर्किंग होता है। सो दिस इज हाउ एफडीएम वर्क्स, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ओके, सो ये प्लास्टिक के लिए है बेसिकली। एंड अगला जो है एसएलए, स्टीरियोलिथोग्राफी, वो लिक्विड का होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो लिक्विड रेजिन होता है, एंड जहां पे भी पार्ट को बनाना है, नेसेसरी है, वांटेड मटेरियल है, वहां पे लेजर का बीम का एक्टिवेशन होगा। लेजर का बीम वहां पे इंपैक्ट किया जाएगा, एंड वहां पे ये जो लिक्विड रेजिन है उसका लिक्विड से सॉलिड में क्रिएट होगा, एंड इस तरीके से लेयर बाय लेयर वो सॉलिड पार्ट बनते जाएगा। सो दिस इज एसएलए। एंड सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो है उसमें क्या होता है कि मेटल का पाउडर होता है। मेटल का पाउडर
बेस नीचे रहता है एंड उस पे भी लेजर का इम्पैक्ट करते हैं एंड उस तरीके से उसका भी सिंटरिंग होके फिर प्रोडक्ट तैयार होते जाता है, सॉलिड प्रोडक्ट तैयार होते जाता है। इसमें एक्चुअली 2 वीडियोस है। अभी एक्चुअली मैंने ये पीसी चेंज किया है, डेस्कटॉप चेंज किया है, इसके वजह से इस पीसी पे नहीं है मेरे पास। तो मे बी कल अपन फिर से मिलने वाले हैं दोपहर के टाइम, तो वहां पे वीडियोस देखने को मैं बोल दूंगा सर को, कल के जो अपने एक्सपर्ट है उनको पहले, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दी फर्दर पार्ट्स, फर्दर कंसेप्ट्स। ठीक है, तो उसमें जो 2 वीडियोस है उसमें एक तो है प्लास्टिक मॉडलिंग का, प्लास्टिक के पार्ट का, एंड दूसरा है मेटल का जो लेजर सिंटरिंग का है। तो वो देखने के बाद आपके और भी जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। कंसेप्ट्स देखे अपन ने, इंट्रोडक्शन देखा, कंसेप्ट्स देखे। कल शायद आपको एप्लीकेशंस क्या है इसके वो डिस्कस करने हैं, कुछ वीडियोस है वो दिखाएंगे एंड बाकी का पार्ट फिर प्रीतम सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अभी पूछ सकते हो और वी कैन स्टॉप हियर। सर एफडीएम में जो प्रोब्स रहते हैं उसका करके हिट दिया जाता है? नहीं, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। एफडीएम का क्या? सर वो डायग्राम दिखाई थी आपने जो रोलर्स के प्रोब्स रहते हैं, ओके, वो रेजिस्टिव पावर देकर करते, मतलब हीटिंग कैसे करते हैं उनकी? वहां पे इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो रहता है ना, उस तरीके से वो काम करता है। जैसे किसी प्लास्टिक को अपन ने हीट दिया तो वो कैसे मेल्ट हो जाता है, सेम उसी तरीके से हीटिंग होता है वहां पे उसके प्रोब के अंदर। हीटिंग होने के बाद वो सॉलिड प्लास्टिक सेमी सॉलिड बन जाता है, मतलब उसका पेस्ट बनता है, एंड देन वो पेस्ट प्रोब से बाहर आता है। That's FDM only for plastic में सर? हाँ, एफडीएम सिर्फ प्लास्टिक के लिए, यहाँ से प्रोब से फिर वो बाहर आता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। और भी कुछ मतलब आप इस एफडीएम में आप सपोर्ट के साथ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? हाँ बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज आपके सामने है, ये पूरा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ऊपर का प्रोब है एंड नीचे का प्रोडक्ट है। तो ये ब्लू कलर का जो है, डार्क ब्लू कलर का, वो एक्चुअल पार्ट है जो अपने को चाहिए, एंड फेंट ब्लू कलर का जो ये बीच में दिखाया, दैट इज द सपोर्ट मटेरियल। अभी सपोर्ट मटेरियल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी ये जो मशीन है 3D प्रिंटिंग, ये लेयर बाय लेयर जब मैन्युफैक्चर करते जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बेस से लेकर, टेबल से लेकर ऊपर तक मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ पे, मेरा जो कर्सर है, वो ओवरहैंगिंग पार्ट है, मतलब वहां पे नीचे एयर रहेगा एक्चुअल पार्ट में। लेकिन अपने को क्या है कि मटेरियल हवा में डिपॉजिट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पहले सपोर्टिंग मटेरियल डिपॉजिट होगा, यहाँ से लेकर इस हाइट तक, एंड ये हाइट तक आने के बाद ऊपर का जो है ये पूरा एक्चुअल मटेरियल का डिपोजिशन होगा, ब्लू कलर का। सर फिर हीटिंग के कारण स्टिक नहीं होगा क्या वो? नहीं, वो अलग सा रहता है। अभी सपोर्टिंग मटेरियल जो होता है वो उसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, एंड एक्चुअल पार्ट का जो मटेरियल होता है उसके अलग होते हैं। दोनों मटेरियल्स अलग होते हैं, प्लास्टिक ही रहते हैं, लेकिन प्लास्टिक में जैसे अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो, ये पार्ट जब भी बन जाएगा, ये पार्ट पूरा बन जाएगा, तो पार्ट पूरा बनाने के बाद वो सपोर्टिंग मटेरियल को रिमूव किया जाता है। रिमूव कैसे करते हैं? एक तो कट किया जाता है डायरेक्ट सीजर से, या फिर उसको कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि वो पूरे पार्ट को बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है। बॉइलिंग वाटर में क्या होता है कि सपोर्टिव मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो उससे वो मेल्ट हो जाता है बॉइलिंग वाटर में, लेकिन एक्चुअल जो पार्ट है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, वो वैसे ही रहता है। तो इस तरीके से सपोर्टिंग मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल को सेपरेट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। यस सर, वन ऑफ द क्वेश्चन सर, इसकी जो है सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना रहता है सर, और क्या चांसेस है कि श्रिंकिंग हो जाए पार्ट? नहीं, वो जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उसको डिजाइन ही इस तरीके से करते हैं, एंड मटेरियल जो यूज करते हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल होता है। मतलब
3D प्रिंटिंग में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ लिमिटेड मटेरियल्स ही यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का अगर बात करेंगे तो उसमें कुछ लिमिटेड ग्रेड्स ही रहते हैं, कौन सा भी प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि उसको सेमी सॉलिड क्रिएट करना, सेमी सॉलिड से उसको पेस्ट डिपॉजिट करना, पेस्ट डिपॉजिट होने के बाद वो हार्डली 1 और 2 सेकंड्स में ही उसको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, जब भी वो प्रोब में रहेगा यहाँ पे जहाँ पे लिक्विफायर्स एरो से दिखा है, तो यहाँ पे वो सेमी सॉलिड रहेगा, लेकिन जब भी उसको डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद वो इमीडिएटली हार्डली 1 और 2 सेकंड्स में ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरीके से उसका सेटिंग रहता है। वो डिजाइन उस तरीके से करते हैं 3D प्रिंटिंग मशीन की वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में। ओके सर, तो सर क्या श्रिंक के चांसेस रहते हैं सर उसके अंदर, यानी कि जो एक्चुअल साइज से कुछ कम ज्यादा लिमिट हो जाए? हाँ, उसमें चांसेस रहेंगे। यस, श्रिंकिंग का होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है। सो मशीन के कंपनी से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता होगा ना, मतलब दो अलग अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है ये मैन्युफैक्चर करने वाले 3D प्रिंटिंग मशीन का। एंड 3D प्रिंटिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर जैसे जितने ज्यादा है उतना ही उसमें वेरिएशन है अलग अलग। लेकिन आज जो अपन ने डिस्कस किया, FDM हो या SLS हो या बेसिक कंसेप्ट हो, ये पूरा बेसिक डिस्कशन किया अपन ने। डिटेल में उसके और भी आपको दिखाई देगा। आप अगर वेबसाइट या गूगल पे सर्च करोगे तो और डिटेल में आपको देखने को मिल सकता है। सर जो हमारे कॉलेज को वो कौन सी है? हाँ प्लीज। हमारे कॉलेज में जो है मशीन 3D प्रिंटिंग की, वो कौन सी मतलब वो कौन सा है ऐसे तो नहीं। FDM, it was a FDM machine. हमारे कॉलेज में जो है वो FDM मशीन है जिससे मटेरियल डिपॉजिट होता है। सो विच फिगर विच यू आर सीइंग दैट वाज द सेम काइंड ऑफ मशीन। हाँ, FDM मशीन है। उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो लोकल है एक्चुअली, वो किसी कंपनी का नहीं है बेसिकली। ओके सर, हाँ थैंक यू। हेलो सर। हाँ, इसको मतलब ऐसे प्रोग्राम करना पड़ता होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उसको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, लेकिन जो पार्ट हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका प्रोग्राम बनाना पड़ता है। बट हम प्रोग्रामिंग नहीं करते, वी आर गोइंग टू यूज अ सॉफ्टवेयर विच वी विल लर्न इन द लास्ट सेशन। कि उसका प्रोग्रामिंग कैसे बनेगा वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनेगा, वो सॉफ्टवेयर हम लास्ट सेशन में सीखने वाले हैं। अच्छा, मतलब सपोर्टिव मेटल डालना है कि कहाँ पे ऐसे फिलर डालना है, वो प्रोग्रामिंग में आता है। वो सब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा, उसका प्रोग्राम बनेगी, वो हमें डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम सॉफ्टवेयर को कमांड देंगे, सॉफ्टवेयर विल डू द ऑल द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस? और सर मेटल भी, जब मेटल यूज करे तो मेटल भी ऐसे मेल्ट करके डालते क्या? मतलब उधर तो ज्यादा हीटिंग लगती होगी। हाँ राइट, उसके लिए ज्यादा हीटिंग लगती है। प्रिंटर जो रहेंगे वो अलग रहेंगे, तो उस प्रिंटर में जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं उस हिसाब से उसके नोजल की सेटिंग रहती है कि कितने इसके ऊपर वो जो मेटल रहेगा वो सेमी सॉलिडिफाई होगा। उस हिसाब से उस प्रिंटर के नोजल की सेटिंग रहेगी और उस हिसाब से वो मेल्ट होगा। ओके सर। यस, एनी मोर क्वेश्चन? अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो कल का एंड परसों का जो सेशन है जिसमें आप डिटेल में देखने वाले हो उसमें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यू कैन कीप योर क्वेश्चंस विथ यू एंड अभी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो या फिर कल परसों का टाइम है ही आपके पास। सर इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है सर? सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे है क्यूरा सॉफ्टवेयर। इट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वी विल शेयर द लिंक विथ यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप so that on the last session you will have the software installed with you and so that you can practice simultaneously when the session is going on. So I will share the link today with you on the WhatsApp group. राइट सर, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। अपने पास जो मशीन है कॉलेज के पास उसमें क्यूरा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एंड मैन्युफैक्चर चेंज हो गया तो
सॉफ्टवेयर भी चेंज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का नाम चेंज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। ओके सर, सर पार्ट का डिजाइन थैंक यू हम सो मच सर। भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं ना, मतलब जैसे सॉलिड यस, वर्क्स हो। पार्ट डिजाइन आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, इवन एनी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर और एनी सिविल सॉफ्टवेयर यू कैन यूज फॉर द डूइंग दैट पर्टिकुलर modeling of the part. CAD, CATIA, Creo, etc. software you can use. And even you can scan the any particular live part and you can convert that part and you can print it using the 3D printer. So if you have having any 3D scanner available with you, you can scan that model. ओके सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस Okay, नहीं thank होंगे you. तो आप लीव कर सकते हो ग्रुप। In today's session, first I would like to thank the Vishwesh Kate sir for conducting such a nice session and clearing all the doubts of the students. कल का सेशन जो रहेगा सेम 3:30 को स्टार्ट होगा and it will be delivered by a expert from the GH Raisoni College of Engineering, Nagpur. That will be a interesting session, so everyone should be joined on the time. Thank you everyone. You can leave the meeting. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.